ठीक है पोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, भली करे आया, and then खुश आमदीद, and a very good evening to all. Hope all are you safe and sound in this pandemic situation. So there will always be a reason why you meet with the people. Either you need them to change your life, or you are the one that will change theirs. Technology Incubation Center, with the collaboration of the SCDC Skills Career Development Center at University of St. Jamshoro, are organized the series of webinars on career counseling for the IT, software, computer science, electronics, telecommunication disciplines. Our vision to change the life of youngsters who are fragile, looking for the right path, and how to achieve their future goals and find their dream jobs. Today in these sessions, actually this is the series of the session. So the first session is an introduction session in which we invite a very renowned and professional people. So the today's session is presided by our Honorable Senior Most Professor, University of St. Jamshoro, and Dean Faculty of Engineering and Technology, Professor Dr. Khalilur Rahman Khumbati. He is a very kind, pleasant personality and having a big, long experience of academic and career counseling in their modern disciplines. We have an he have a, international experience and working various international organizations. And thank you, sir. You gave us your precious time. The speaker, the today's session speaker, is a very pleasant personality, and I am really impressed by him a lot. Very few days ago we met, and at a young age he achieved lots of the targets, and very organized, passionate, and enthusiastic to guide and mentor the young youth of IT, software engineering, and computer science disciplines. Mr. Wakar Kadir is a software engineer, product manager, and founder of Smart Mentor app and I Support Cause app. Welcome, dear Wakas. You spare your time from your busy schedules as you've shown us a very, very long queue of the activities. We have with us Professor Dr. Kamran Taj Pathan. He is a chairman, Department of Software Engineering, focal person of the SCDC University of St. Jamshoro, and he is a philanthropist. Very energetic, passionate person towards the career counseling and have been engaged with SCDC since last 3 years and trained many of our students from the field of IT, software engineering, computer science, electronics, and telecommunication. Welcome, Dr. Kamran. And in the last, I introduced myself. I'm Dr. Arfa Bhutto. I'm assistant professor at IT department and focal person technology incubation center. So before the start of the session, I welcome you all and welcome all the participants who are watching with us and view with us. I'm really encouraged and appreciate. Do send us the comments and participate in these sessions. I definitely give you the guarantee after the completing these sessions, you will be achieve your dream job. At least you learn something. So we start a session with our senior most professor, Professor Dr. Khalilur Rahman Khumbati, who is presiding today's session. So please, sir, enlighten us about perfectly package our career webinar series sessions and welcome our guest speaker. Sir, over to you. Madam, 4 screen वारो करिए. Yes. Hello, sir. Sorry, sir, you will out. I again invite you. So the today's session is presided by our senior most professor, Professor Dr. Khalilur Rahman Khumbati Saab. Please, sir, enlighten us about the series of this program, Perfectly Package Your Career, and welcome our guest, Mr. Wakar Sumro, and please, over to you, sir.
Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all, and I'm really very thankful to the focal person of Technology Incubation Center, University of Sindh, which is working under the umbrella of Faculty of Engineering and Technology. I'm also very thankful to our guest speaker, Waqas Kadir, who's a very brilliant, young, talented guy. I'm sure that the audience will get the benefit from his knowledge. And last but not the least, I'm also very thankful to Dr. Kamran Tajpathan, who is the chairman of Department of Software Engineering and also the focal person of STAC Career Development Skill Center. I'm sure that the audience specifically, they will get the benefit of today's talk. Whatever their questions are, they will be welcome by us, and I'm sure that the Waqas will reply them accordingly. I'm not going to take more time. Once again, I'm thankful to all of you for arranging such series of seminars. Thank you all. Allah bless. Thank you very much, sir. It's really nice and motivated talk to you, encourage the youngsters. And so now I actually invite Mr. Waqas to give brief talk about the webinar series of the session. The title of the series is a Perfectly Package Your Career. So please, over to you, Mr. Waqas. Okay. Thank you, Dr. Khalid Saab and Professor Kamran and Dr. Arif Habito Saiba for the opportunity to share the knowledge and expertise with the students. It's a privilege. Just to confirm, so what should be the communication channel, whatever the audience prefers. So I'm very flexible, either English or Urdu or whatever you want. So up to you if you just, what's your official channel of communication, so I will prefer accordingly. I think it's up to you. If you feel comfortable, you can mix any language. Sure. As officially, I start in the English, but we are mixing all the things together, and depending on the questions, sure, what the students are asking. So it's up to you. Sure. You feel comfortable. Okay. Yeah, I think, yeah, it's fine. Yeah, thank you so much. So I will start with my screen share right now. So let me share my screen. Yeah. Let me see if you can see my screen. Can you see my screen now? Yes. Okay. I add to the. Yes, now. Okay. Yes. Okay. Perfect. That's good. Let me see if I can see also the video or. Okay. Just a minute. Give me a minute. It seems like I cannot see the meeting, so I cannot present it within the window, right? I don't know exactly what's happening. Otherwise, I can share your slides. Yeah, that would be possible if you can share with some from your screen, so I can see it in the window. Oh yeah. Okay. Right now, I can see either the other window or the meeting window. So. Okay. I just opened it. Your presentation. Yeah, I think. Yeah, if you can open the fifth window here. Okay. Actually, the technology make us easier also, and sometimes make it confused also. I think now everybody watching it. It's loading. Yeah, now I can see it. Yes. Okay. Okay, so just to brief about this session. So the purpose of this session is just to create some awareness about the students. Like some students, like they end up shortlisting in some disciplines, but their passion is might be something different for you. Like, some people are artistic people by birth, some people are problem solvers, some are, like engineering mindset, some are creative people. So sometimes they find like, okay, we are in the software engineering field and might be
we are not sure what we will exactly do after the degree. So the purpose of this series of sessions is actually to create this, to create the awareness about what type of opportunities you can have after finishing your degree and how to prepare accordingly so you don't waste your time after the graduation. So you should be ready for getting the job right after the graduation or even before graduation in the final semester. And what are the jobs and specialization which can be possible through this degree, and what are the skill set which every employer, every company, all the corporate companies are looking for. And just to tell you, like, there are specific type of opportunities which are available all the time, and the problem is not about the jobs, the problem is about the finding the right talent. And unfortunately, it's very difficult to find the right talent. So I will let you know about what employers are looking for, which they are not able to find. And if you work on those, you will be easily hired by any company. And then how you can prepare for your interview, how you can learn online, so don't depend on anyone. I will tell you about the list of things which you can focus from Coursera or Udemy or whatever source of channel possible. And last but not the least, if you achieve those skills, you really do job, any opportunity or any company, you can actually make your money online by working remotely for any company across the world, not just in Pakistan, because the skills are global across the world for these digital and programming things. So please, next slide, please. Next slide, please. Yes, it is, Okay. but a little bit slow, I think. Yes. Sure. Okay. So basically, the main problem is actually not about only the subjects you study. It's also about like how to find your first job. And I will also focus on those, like before even going for the interview, you should have your self-assessment, your self-awareness, and the checklist, how to find those jobs and how to qualify your you can interview yourself from as a peer-to-peer, and you will make sure like you are eligible for the opportunities or not. And if not, then it's not like a yes or no. There is like a ways to improve and iterate over it, and you can get over it. And next thing is your passions or strength. For example, what are the things which you can actually, for example, just imagine like you are a problem solver, and what is the best job which suits you most? For example, there's an IT job, there's a databases job, there's programming, game development, also so many different fields. So what's the best field which suits you most based on your personality type, based on your IQ, based on the EQ, and based on your, the prepared materials. So I will let you know how to assess that as well. And once you're done with all those self-assessment things and learning things, then the next topic is about how to access to the market, how to achieve, how to go towards your, the next milestone of getting your job through recruiters or companies. So I will talk about that in the next slides. And also one thing is software engineering jobs. So the one thing is, like, we think like a software engineering is just like a one job or a one department, but actually there are dozens of jobs actually created from software engineering. It could be even a technical business analyst, technical project manager, and it could be a customer-centered approaches where you have to understand about the software, and actually you can convert your end user requirements. So I will talk in detail later on. And yeah, last but not least, how you can earn online and how can you work from home for any company in the world. So next slide, please. Okay, so I will try to switch into the Urdu right now. So I think it will be more engaging for the people, just to be in their own a little bit of cultural field. So सबसे पहले जो main challenge होता है, it's all about your purpose. आपने डिग्री में गए क्यों? दो चीज़ होती है, एक होता है कि आपको क्योंकि डिपार्टमेंट वही मिला, बाय चांस आप चले गए, आपका शौक किसी और चीज़ में था. So that's actually a problem for many people, but it could be opportunity for you, and we will think about it how to do it. And काफ़ी लोगों के पास ये भी होता है कि वो फॉर एग्जांपल आ तो जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन जब आ जाते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता एग्जैक्टली कि वो कौन से सब्जेक्ट्स में किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और जब डिग्री के बाद निकलेंगे तो उनको किस तरह की जॉब्स मिलेंगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और वो कैसे मिलेंगी. So all these are some questions which every student normally in the 3rd, 2nd year or 4th year has, except few people who have like a direct access to some mentors and advisors. तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि आप डिग्री में आए क्यों हैं, ठीक है. और अगर आप अपनी मर्ज़ी से आए तो इट मीन्स यू नो योर पर्पस. अगर आप
अपनी मर्जी से नहीं आए, फॉर एग्जांपल आप केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड में जाना चाह रहे थे और आप कंप्यूटर साइंस में आ गए, सो नाउ हाउ कैन यू एक्चुअली गेट अ ग्रिप ओवर इट एंड यूज़ इट फॉर योर ओन गेन। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जिस तरह से अगर किसी बंदे को आर्टिस्ट में शौक था, आर्ट्स में, डिज़ाइन में, ड्राइंग्स में, एंड उसको आर्ट्स में जाना था और वो गलती से कंप्यूटर में आ गया है, तो आई विल टेल यू हाउ एक्चुअली ही कैन क्रिएट दिस स्ट्रेंथ इनटू द अपॉर्चुनिटी। या कोई बंदा इस तरह भी हो सकता है कि एक्चुअली फॉर एग्जांपल किसी बंदे को डॉक्टर बनना था। जस्ट इमेजिन समबडी प्लानिंग फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर इन हिज चाइल्डहुड, बस बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स प्रेशर कि नहीं हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो उसकी वजह से वो गलती से उसने सेलेक्ट बस उस फील्ड में आ गया बाय प्रेशर। ही कैन स्टिल फॉलो हिज पैशन ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट थ्रू द सॉफ्टवेयर फील्ड। फॉर एग्जांपल मेडिकल की फील्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आजकल आ गई हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें बन रही हैं बेसिकली। जिस तरह से आप इमेज प्रोसेसिंग हो गई, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जिसके थ्रू ऑपरेशंस भी आजकल रोबोटिक्स आ गई है। तो दोज ऑल थिंग्स आर डन बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो अगर आपका पैशन मेडिकल था, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भी ऑपरेशन करना शुरू कर दें। एक्चुअली यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द मेडिकल डिपार्टमेंट थ्रू योर सॉफ्टवेयर स्किल्स, थ्रू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, मिलियंस की तादाद में डॉक्टर्स हैं। You single-handedly create a huge transformation for all the doctors by solving their challenges, problems, digitizing their processes, and इतने हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, जो कि बेचारे लाइन में लगे होते हैं एक डॉक्टर के पीछे। जस्ट इमेजिन करें कि एक पेशेंट को प्रोसेस करने में 1 घंटा लग रहा है थ्रू देयर प्रोसेसिंग। अगर आप उस पर इनोवेशन लाएं, आप कहें कि मरीज़ को प्रोसेसिंग करने की जो लंबी एक कतार है, 1 घंटा लग रहा है पर पर्सन, मैं इसको किसी सोल्यूशन के साथ सॉल्व कर दूं जिसमें हम बटन, डॉक्टर को सिर्फ एक बटन दे दें जिसके सारा पेशेंट का डेटा आ जाए, ये आ जाए, वो जाए। तो बेसिकली यू कैन सेव 1 आवर ऑफ 1 पेशेंट, जिसकी वजह से वही डॉक्टर जो 100 बंदों को ट्रीट कर रहा था एक दिन में, तो वो एक डॉक्टर हज़ारों बंदों को ट्रीट कर सकते हैं एक दिन, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इम्पैक्ट। सो दिस इज जस्ट अ थॉट ऑफ प्रोसेस कि हाउ एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन वर्क इन एनी फील्ड एंड एनी डिपार्टमेंट्स। उसके बाद ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग होते हैं जिनका माइंडसेट बचपन में होता है कि जस्ट इमेजिन आपका प्रॉब्लम, यू आर मोर लाइक अ क्रिएटिव पर्सन, हमेशा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता है। तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग इज़ अ गुड सब्जेक्ट फॉर यू। यू कैन एक्चुअली सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स थ्रू प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक्स। अगर आप इस तरह के माइंडसेट है आपका, फॉरगेट अबाउट योर डिग्री। डिग्री इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर फॉर यू टू हैव इट इन द एंड ऑफ एज अ प्रूफ ऑफ कि आपके पास क्वालिफिकेशन है एंड यू कैन क्वालिफाई टू अप्लाई फॉर अ जॉब, दैट्स इट। डिग्री कैन नॉट गिव यू प्रमोशंस, डिग्री कैन नॉट गिव यू द ग्रोथ, दैट्स ऑल अबाउट यू कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं अपने गेन के लिए। तो डिग्री आपको मिल गई, उसके बाद आप ये देखें कि लेट्स सपोज आपका माइंड था क्रिटिकल, आपको हमेशा किसी चीज़ में ना उसमें कोई फ्लॉज नज़र आते हैं, आपको लगता है कि परफेक्शन इस तरह से होनी चाहिए थी। तो उसमें बेसिकली दिस कुड बी अ बिजनेस एनालिस्ट रोल फॉर यू इन द सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, या इट कुड बी अ क्वालिटी एश्योरेंस रोल फॉर यू, जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर में जाऊँ, सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी एज अ क्वालिटी परफेक्शन जिस तरह से होती है मैं उसके हिसाब से उसको यूज़ करूँ। उसमें कोई भी मुझे फ्लॉ नज़र आता है, आई कैन इमीडिएटली रिपोर्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर और डेवलपर। सो दिस कुड बी वन रोल। इसके अलावा अगर इमेजिन करें कि यू आर गुड राइटर, टेक्निकल राइटिंग स्किल्स, आपको आर्टिकल्स लिखने का बड़ा शौक था, मैगजीन्स में लिखने का बड़ा शौक था, या आपको जर्नलिस्ट बनने का शौक था कि मैं अखबारों में मैगजीन्स लिखूंगा, तो इट मीन्स यू हैव गॉट गिफ्टेड टैलेंट कि आपके अंदर राइटिंग बहुत अच्छी थी। नाउ हाउ कैन यू यूज़ दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डिग्री, कि आप सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर टेक्निकल राइटर बहुत कम मिलते हैं, अच्छे वाले, क्वालिटी वाले, जो कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस तरह का कंटेंट लिख सके जो कि एक बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल बंदा है जिसको सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा, तो बेसिकली कंटेंट्स के लेबल्स इस तरह से होते हैं, कहीं पे वो जो जुमले लिखे होते हैं इंग्लिश में कि देयर इज सम एरर, देयर इज दिस एंड दिस, तो वो इस तरह से आप लिखें कि वो बंदे को फ़ौरन समझ आ जाए जो यूज़र है हमारा। एंड एक्चुअली दिस कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनी ओवरऑल। सो एंड उसकी भी बहुत हाई फाई जॉब्स होती हैं और बहुत ही हाई पेड सैलरीज होती हैं फॉर द टेक्निकल कंटेंट राइटर्स। So forget about the programming, forget about the quality assurance, networking, graphics, all these things. This is just a single skill which you can monetize through this degree. क्योंकि आपको सारा बैकग्राउंड पता होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको प्रोग्रामिंग डिटेल में आती हो। उसके बाद आ गया, काफ़ी लोग होते हैं जिसको कार्टून्स, गेमिंग्स, स्पोर्ट्स के बड़े शौक होते हैं, या किसको म्यूज़िक का बहुत शौक है। एक्चुअली दे कैन आल्सो फॉलो देयर पैशन ऑफ देयर चाइल्डहुड थ्रू दिस सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर साइंस डिग्री। So this is just one. उसके बाद अगर हम okay, so how to achieve those jobs? So the problem is कि
किसी भी जॉब्स को लेने के लिए उसके ना पहले से समझ लें ओपन पेपर या गेस्ट पेपर, जस्ट इमेजिन कर लें कि अगर कोई यूनिवर्सिटी को एग्जाम को आपको बताया जाए कि पेपर के टॉपिक सिर्फ ये होंगे, आपको यही पढ़ के आने और इसमें से हमारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, इसमें से हमारे एग्जाम्स होंगे, MCQs होंगे। तो अगर आपको बताया जाए कि एक चैप्टर A, B, C पढ़ना है, सारी बुक नहीं पढ़नी, तो आप 3 बुक बहुत फोकस से पढ़ेंगे और चांसेस होंगे कि आप सारे सवाल आसानी से दे देंगे। तो द सेम वे जो जॉब्स होती हैं उसकी सारी चीज़ें पहले से कंपनीज बता दी कि हमें इस तरह का टैलेंट चाहिए, हमें इस तरह की स्किल्स चाहिए, हमें मिल नहीं रही। एक्चुअली दे आर पेइंग अ ह्यूज मनी टू रिक्रूटर्स एंड द HR डायरेक्टर्स, HR मैनेजर्स कि हम इस तरह का बंदा ढूंढ के दें जो हमें इस स्किल्स वाला हो। So it means there is a huge demand of such type of a people, but it's very rare to find those graduates having those type of skill sets. या तो उनको सब कुछ आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा सा, किसी में भी परफेक्ट नहीं होते, गेमिंग भी आ रही होती है, प्रोग्रामिंग भी आ रही है, ये भी आ रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं की हुई, तो उनको समझ नहीं आती कि मैं जॉब कौन सी करूँ। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे जॉब कौन सी करनी है, व्हाट्स माई पैशन। उसके बाद फिर आना है कि ओके अगर मुझे ये जॉब करनी है तो इसका फिर लाया अमल क्या है, हाउ आई कैन गेट एक्चुअली जॉब विच कैन which I can feel proud and I can grow. I can feel happy because this is my passion, and I ultimately you will grow faster as compared to the other jobs because this is your passion. You will be enjoying your job while making money. तो फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग जॉब्स आ गई तो उसके अंदर हमें पता होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, कुछ हमारे 12 प्री डिफाइंड होते हैं वो भी। और दिस नॉर्मली टेक्स लाइक अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स भी आपने पढ़ने, डजंट टेक्स टू मच टाइम, यू कैन स्किम थ्रू इट। उसके बाद फिर आप डिटेल में एक के ऊपर डिटेल में केस स्टडीज़ पढ़ें तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं। अब डोंट थिंक कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो पाकिस्तान में किसी और तरह से हो रही होगी और अमेरिका में किसी और तरह से हो रही होगी। दिस इज़ द यूनिवर्सल सब्जेक्ट। तो एक बंदा जो सिंध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, एंड इफ़ यू नो द बेस्ट प्रैक्टिसेस, he can be easily recruited in America, Canada, anywhere in the world without much experience. सर सिर्फ आपको बस एक साल अगर पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसके बाद आप इंटरनेशनल कंपनीज को रीच करें। एंड आई कैन टेल यू हाउ टू रीच दिस, दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। खुद वो आके आपको रिक्रूट नहीं करेंगे पाकिस्तान में आपके, उसका भी कोई तरीक़ाकार होता है, हाउ टू रिक्रूट दोज रिक्रूटर्स, हाउ टू रीच आउट दोज फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ऑल दोज कंपनीज एज अ नॉट एज अ प्लेटफॉर्म्स, एज अ कंपनीज जो अमेरिका में हैं, फेसबुक या गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी अभी तक नहीं आई। प्रोग्रामिंग एंड इंटरव्यूज। ओके, नाउ आई गॉट इट। So programming के अंदर, this is just my personal experience. There could be more topics in it, but I experienced myself like I have been selected in so many companies in the past. For example, I gave the interviews in American companies, या कुछ UAE के अंदर, दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। I found one thing common कि for the fresh graduates जो initial recruitment या screening होती है, that's almost same, 90% 80% same। फिर हर कंपनी की 5-10% एक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि हमें इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, हमें इस तरह के फ्रेमवर्क्स चाहिए, बट जो उसका बैकबोन है, जो बैक कॉन्सेप्ट्स हैं, दोज आर ऑल सेम। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने पढ़े होंगे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पर आपको अगर इसमें एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लें, नॉट फॉर द सेक ऑफ थ्योरी, नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बिहाइंड द सीन ये काम किस तरह का है, कोड, how to actually write those classes, and actually where to use these concepts and why to use these concepts. तो उसके बाद you can apply in any company. तो उसके बाद हम जॉब सर्चिंग भी आते हैं कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पे आए, जॉब सर्चिंग। Okay, so those are all the things which I just, as I gave you a very high level of roadmap as introduction. We will definitely talk in detail later on. अगर आप सारी वो चीज़ें कर लेते हैं, now I will say you are ready for job. अगर आप कह रहे हैं कि मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कोई कॉल नहीं आ रही, मैं CVs 100 जगह पे अप्लाई की है और मुझे एक जगह भी कॉल नहीं कर रहा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट माइट बी समथिंग रॉन्ग इन योर CV। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, there might be something missing which you don't know yourself. Until you don't know yourself, how will you apply for the job? तो उससे बेहतर तरीका यही कि वो जो मैंने आपको चेकलिस्ट दी है, आप उसको पहले सारी को बेशक आप अपने प्रिंट करके रख लें। आई कैन आल्सो शेयर द स्लाइड्स विद द टीम एंड दे कैन शेयर विद यू। सो आपने उस चेकलिस्ट को देखना है कि मुझे इसमें से कौन सी चेकलिस्ट आ रही है
और उसमें से मेरी कौन सी चेकलिस्ट मेरी मिसिंग है, कौन से आइटम्स मेरे मिसिंग हैं. Whatever is missing, you have to actually learn those. Maybe it will take 1, 2 or 3 weeks of it, only reading kind of a thing. अब जब उसके बाद 1-2 आपको क्या करना है, आपको खुद से देखना है कि can I solve the interviews before wasting your opportunity for the company. Solve those questions online. कि जिस तरह मैंने आपको सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि go through sample Facebook and Google interviews. तो उनका क्या होता है कि ऑनलाइन एक पूरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो quora.com पे या ऑनलाइन आप सर्च भी कर लेंगे ना, फेसबुक इंटरव्यू फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गूगल इंटरव्यू फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स, यू विल फाइंड ऑल दोज क्वेश्चंस देयर. जितने भी लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं. सो एक्चुअली दिस विल हेल्प यू कि वेदर आई कैन सॉल्व दिस और नॉट. अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो बस उस टॉपिक को लेके देखेंगे दिस इज माई वीकनेस, फिर उसको पढ़ना शुरू कर दें. I think this is not a month of activity. This is just a 1 week, 2 weeks, maximum 4 weeks of activity. जिसमें आप मैं 100% गारंटी कह सकता हूँ कि अगर आप वो सारी चीज़ें चेक मार्क कर देते हैं, you will 100% with 100% guarantee you will get the job as a software engineering. अब उसमें आपको सैलरी कितने मिलेगी उसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन जॉब मिल जाएगी. ठीक है, अब वो जो सैलरी मिलेगी दैट्स योर IQ कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से, आपका पैशन किस तरह का है, आपने 4 साल किस तरह से यूज़ किए हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में. क्योंकि ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट कि सिर्फ ये नहीं कि आपने 4 साल लगा और आप आखिर में कहें कि मेरी प्रोग्रामिंग वीक है. नो, यू वर सपोज टू स्टडी फॉर 4 years. व्हाट यू डिड देयर, यू शुड बी एक्सपर्ट एटलीस्ट इन समथिंग एंड यू शुड हैव स्पेंट दोज 4 years ऑन दोज थिंग्स. ठीक है, तो आप अपनी अच्छा उसके बाद हम आते हैं कस्टमाइज पर्सनलाइज CV. Let's say you went through all this checklist, you solved those Facebook and Google interviews online. आपको लगता है now you are improving a lot. Now you thinking to give it a try at least. Let's see if I can pass the interviews or not. तो उस वक्त फिर आपको CV और cover letter is a very important thing to get a phone call or at least an email. तो उसमें आपको सबसे पहले ये प्रिपेयर करना है कि आप अपने आप को पहले पेंसिल पेपर लें. फॉर एग्जांपल इस तरह का एक पेंसिल पेपर लेके इस पे ही आप लिखना शुरू कर दें कि who am I, what's my, how can I define myself in one sentence. ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में स्टॉर्मिंग करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग. उसके ऊपर देखें कि ओके बचपन से लेके अभी तक क्या चीज़ें जो मुझे डिफ्रेंशिएट कर रही है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम नॉर्मली? Hello? Yeah. Actually, we have a different. Normally, we have 120 to 130 in IT Okay, and that's software. okay. Yeah. Okay, so 130 is a big number. So just to, I strongly believe on one thing, every person in this whole universe is unique. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि we actually compare people. अगर 120 पीपल हैं, 120 पीपल हैं इवन, तो कोई हो सकता है टीचर का फेवरेट हो, तो वो फिर टीचर उसको लगता है कि दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस एंड दैट. नो, आई पर्सनली बिलीव एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स, वो चाहे 120 जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसमें जो फ्रंट वाले बैठे हैं और जो बिल्कुल बैक वाले बैठे हैं, बैक वालों में भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी. हो सकता है वो स्टडी में वीक हो सकता है वो प्रोग्रामिंग में वीक हो, बट हो सकता है किसी की क्रिएटिविटी आउटस्टैंडिंग हो. अगर आपको ये सब प्रॉब्लम दें जो कि किसी ने पहली दफ़ा ना पढ़ा हो, अज्यूम करने के ऐसी प्रॉब्लम जो कि किसी ने ना कभी सुनी हो ना कभी पढ़ी हो, एंड यू जस्ट आस्क देम दिस इज अ न्यू आइडिया, न्यू क्वेश्चंस, जस्ट यूज योर माइंड. आई थिंक उस पर वो जो 4 GPA वाले हैं दे विल थिंक अबाउट इट कि हमने ये पढ़ा नहीं पढ़ा, ये कभी पढ़ा नहीं, तो उनका माइंड उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है. जो बंदा बैक बेंच पे बैठा होता है वो फिर माइंड लगाना शुरू कर देता है काफ़ी दफ़ा. तो आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, बट दिस इज, इट कुड बी बिहाइंड द सीन. जो बंदा बैठा हुआ है बैक बेंचेस पे, Allah has given him some creativity, some brainstorming, research skills, mindset skills, intellect और IQ जो कि बाकी बंदों से यूनिक हो, उसको खुद को भी ना पता हो. सो जस्ट लिस्ट ऑन योर सेल्फ कि मैं बचपन से लेके अभी तक क्या चीज़ें हैं जो मुझे खुश करती हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई, और जो मुझे डिस्टिंग्विश करती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच सकते हैं कि मैं बचपन में स्कूल में था तो मैं पजल्स जल्दी सॉल्व कर लेता था, या मैं मैथ्स में बहुत अच्छा होता था लेकिन मैं पाकिस्तान स्टडीज़ में अच्छा नहीं था. इट मीन्स योर लॉजिकल एंड ब्रेन प्रोसेसिंग इज मच बेटर देन अदर्स. आप रट्टा नहीं लगा सकते, दैट्स नॉट एन इशू. कुछ लोग रट्टा लगने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. तो किसका हाफिज़ा बहुत अच्छा होता है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, दिस इज फिजिकल मेडिकल थिंग्स. तो किसकी मेमोरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और किसकी मेमोरी बहुत वीक है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो चीज़ें प्रोसेस करके बस भूल जाता है, वो याद नहीं रखता. तो यू कैन थिंक अबाउट इट. ओके, आपकी अगर मेमोरी अच्छी नहीं तो ऐसे सब्जेक्ट्स में ऐसी जॉब्स ना प्रेफर करें जिसमें आपकी इस तरह की स्किल्स हों, उस तरह की स्किल्स देखें जिसमें आप बहुत अच्छे हों. तो जस्ट हाईलाइट कि एवरी पर्सन इन द क्लासरूम इज़ यूनिक.
राइट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर कि मेरी ये स्किल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम वो रिलेवेंट हैं या नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन। उसके बाद लिखें कि आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है। फॉर एग्जांपल आप क्यों जॉब करना चाहते हैं, ये तो उसमें फिर आपका कोई गोल होगा लॉन्ग टर्म जो कि जॉब से रिलेवेंट होगा। आप क्या सकते, आप ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपके फ्यूचर दें कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में एक्सेल करना चाह रहे हैं, उसमें बेशक आप एज ए CTO बनना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ भी बनना चाहते हैं, यू शुड डिफाइन सम गोल ऑन द विच इज रिगार्डलेस दैट्स शॉर्ट टर्म में है या नहीं है। फिर आप उस तरह से जब जैसे जैसे चीज़ें लिखते जाएंगे, उसके बाद आप देखिए कि मुझे मेरी कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे आती हैं प्रोग्रामिंग में या टूल्स में, सॉफ्टवेयर्स में, जो कि उस जॉब से रिलेवेंट होंगी। और उसके बाद आप लिखेंगे कि मेरी कौन सी अचीवमेंट्स जो मैंने की हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल क्या होता है कि हर बंदा एक जैसी CV बना देता है यूनिवर्सिटी में, उनको एक टेम्पलेट मिल जाता है कहीं से, और फिर क्या करते हैं वो सिर्फ नाम के ना वो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। बेसिकली नेम की जगह वकास लिख देंगे और लिंक्डइन की जगह अपना लिंक्डइन डाल देंगे। दैट्स अ फॉर्म फिलिंग, इट्स नॉट अ रिज्यूमे राइटिंग। So resume writing is all about your personal story, who you are as a human being, who you are as a student, who you are as a fresh graduate. Once you know, okay, these are my strengths: problem solving, analytical skills, brainstorming, research, R&D, programming, object oriented programming, algorithms, data structures. उसके बाद आपका ना एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाएगी जो कि कोई और बंदा नहीं होता, बिल्कुल वैसा का वैसा। उसके बाद आप जब CV लिखेंगे उसमें वो चीज़ें लिखते जाएं जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पेपर पे लिखी हैं। उसके बाद think about what achievements you did in the 4 years degree, and those are not necessarily a GPA, those are not necessarily positions. एक मतलब just to give you example, एक अचीवमेंट आपकी ये हो सकती है कि आपने कोई एक नया एल्गोरिथम इन्वेंट कर दिया, ठीक है, वो आपका, या आपने कोई ऐसी चीज़ की जो कि आपने रिसर्च पेपर लिखा, उसमें कोई ऐसी चीज़ की विच वाज टोटली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, यू फाउंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो 4 साल में कोई ना कोई ऐसी आपकी अचीवमेंट हुई होगी। या ये भी आप हो सकता है कि एक्चुअली आप यू वर अ गुड प्रोग्रामर, यू वर एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बट एक सब्जेक्ट था जिसमें आपने सारे स्टूडेंट्स को टीचिंग वगैरह करते थे। यू वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेटा स्ट्रक्चर्स, लेट्स अज्यूम। तो उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने बाकी सारी क्लास में सबको पढ़ाया है, टीचिंग की है, सो बेसिकली यू कैन से आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दिस सब्जेक्ट। तो कोई ऐसी अचीवमेंट्स लेकिन अपनी CV में लिखें विच कैन मेक यू अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। उसके बाद फिर आप कवर लेटर लिखेंगे, उसमें भी आप लिखेंगे कि लेट्स सपोज आई एम वकास कदीर, पैशनेट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर, दिस एंड दैट, एंड आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी इन अ कंपनी वेयर आई कैन एक्सेल बेस्ड ऑन माय पर्सनल ग्रोथ एंड बेस्ड ऑन माय इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई इस तरह की चीज़ लिखें जो कि जब रिक्रूटर देखे कि उसको वैल्यू नजर आए कि ओके पहले तो हम इस बंदे को हायर क्यों कर रहे हैं, उसके बाद क्या वो हमारे लिए किसी काम का है या नहीं है, और अगर काम का है तो क्या उसका जो गोल है वो मतलब is it complementing us, मतलब if he wants to grow in the software engineering field, तो अल्टीमेटली हर कंपनी चाहती है कि जो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज आ रहा है अल्टीमेटली वो किसी टीम लीड पोजीशन पे पहुंच जाए या ऐसे ग्रो करता जाए कंपनी में। अगर आप इसको गोल ये कहे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरी अपनी दुकान खोलने का मूड है, ठीक है, तो nobody will hire you. So your goal should be very relevant to job. ठीक है, आप किसी को ये कह दें कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना है लेकिन मेरा जो गोल है वो साइंटिस्ट बनना है, सो दिस बेसिकली यू आर नॉट गोइंग इन द राइट जॉब, राइट कंपनी। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है देन अप्लाई इन द रिलेवेंट यूनिवर्सिटी, रिलेवेंट कंपनी विच इज़ अ रिसर्च बेस्ड, जो कि साइंटिस्ट हायर करती हो या इंटर्न्स हायर करती हो लीडिंग टुवर्ड्स साइंटिस्ट। सो योर गोल हैज़ टू बी इंक्रीमेंटल ऑफ योर करंट जॉब, नॉट लाइक अ कंप्लीटली अ ट्रांजिशन। उसके बाद आप रिक्रूटर्स के साथ रीच करेंगे और लिंक्डइन पे जाएंगे। अपना लिंक्डइन बनाना आपका बिल्कुल मस्ट है, और अपने रिक्रूटर्स को कैसे पहुंचना है उसका मैं अभी आपको शॉर्टकट वैसे बता रहा हूँ। आई थिंक वी कैन हैव अ डिटेल सेशन ऑन दोस रिज्यूमेस, ऑल दीस थिंग्स, पर्सनल डेवलपमेंट्स। तो आप बेसिकली गूगल पे जाएंगे और गूगल पे आप सर्च करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स इन कराची, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स इन लाहौर, और अगर आप दुबई में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं कि यू कैन राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स इन दुबई, तो उसके बाद उसमें एक टूल की ऑप्शन आती है। इज इट रिलेवेंट टू शेयर दिस वन और मे बी वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक? सर इट इज रिलेवेंट, प्लीज कंटिन्यू सर। मैं क्योंकि स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था कि उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। Let me share my screen and give you a quick introduction how to do it, because this is something I think even अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सिर्फ ये चीज़ सीख के अप्लाई करना शुरू कर दे, I think this will be the fruit of this whole session.
Yes. So let me share. This is like a software engineering. Okay, software engineering is a very generic word. I can write something very specific. For example, Android developer job in Lahore और कराची, ठीक है. नॉर्मली आपको इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ज़्यादा मिलेंगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर सिटीज़, बट दीज आर द 3 हब्स फॉर आईटी इंडस्ट्री. सो अगर आप जैसे ही जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, लोग इन सारी जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. एंड दिस यू कैन सी जॉब्स आर 1 month old, 5 months old, 2 months old. So nobody will reply you on these jobs. So first thing is you have to do is, आप देख सकते हैं कि 1 month ago posted job है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 month में कोई बंदा हायर हो भी गया होगा और अभी तक वैकेंसी ख़त्म भी हो गई होगी. So don't waste your energy and time on this search, or don't apply on any random job. Use this tool option in the Google. आपको राइट पे नजर आ रहा होगा. I'm not sure if it's highlightable. मेरा जहाँ पे माउस है यहाँ पे. Yes, it is, sir. ठीक है, ओके. सो आप यहाँ पे जाएंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे और उस पर आप कहेंगे कि मुझे लास्ट 1 week की जॉब्स चाहिए, ठीक है, या लास्ट 24 hours की जॉब्स चाहिए. अब मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है. मुझे तो जॉब्स नजर आ रही है हर जगह पे, ठीक है. दिस इज 1 hour ago, 8 hours ago, 21 hours ago, 2 hours ago. So these are the jobs all everywhere. So these are jobs for you to apply, to make sure कि आप इस जॉब्स के लिए पहले क्वालिफाई करें. वरना आप अप्लाई करेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं है, ठीक है. फिर वो नेगेटिव आपका माइंड चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी ना किसी पे हमारा माइंड होता है कि जब नहीं मिलती फिर हम एक्सक्यूज भी ढूंढते हैं. सो यूज़ दिस फॉर एग्जांपल टूल एज अ गूगल सर्च टूल. तो उसमें आप आएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड डेवलपर जॉब है. इन सालों पे फिर आप क्या करेंगे, आपके पास एक प्री रिटन ड्राफ्ट किसी नोटपैड में लिख दें एज अ कवर लेटर, और आपकी सीवी भी कहीं एक फोल्डर में पड़ी हो, हर जगह पे आप अप्लाई करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ गए, आपने देखा कि इसकी क्या जॉब्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो पहले आप देखेंगे कि जो इसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है इनमें से क्या मैं मीट करता हूँ या नहीं करता. अब जिस तरह से ये 1 to 3 years एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें थोड़ा सर्च करेंगे, उसमें आप कहेंगे कि फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है. आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स की भी या इंटर्न्स की जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है. इंटर्न ही ग्रेजुएटेड नीडेड. फॉर एग्जांपल इसमें मैं कहता हूँ कि PHP डेवलपर जॉब इन कराची. तो आप ये देखेंगे कि इसमें लास्ट 24 hours की आ रही, मैं लास्ट 1 week की कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा आ जाए. आपके नज़र आ रही हैं सारी PHP की जॉब्स इतनी सारी हैं कि आई थिंक यू विल स्पेंड होल डे अप्लाइंग ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़. आप, और मेरा ये गेस है कि आप 30 minutes पर डे के हिसाब से लगा के उसके आप डेली बेसिस पे सिर्फ 24 hours में डेली सिर्फ हाफ आवर इन्वेस्ट करें और डेली इस तरह की एक्टिविटी करें. 10 से 20 जॉब्स आप डेली अप्लाई कर सकते हैं. इट विल लिटरली टेक 15 to 20 minutes और मैक्सिमम 30 minutes. वंस यू आर रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स, सीवी और कवर लेटर सारा बना के उसके बाद, तो उसमें आप जब 20 अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 3-4 कॉल्स आएंगे और 3-4 के बाद 1-2 इंटरव्यूज होंगे, और हो सकता है कि उसमें से आपको एक कॉल मिल जाए, एक जॉब मिल जाए. सो दिस इज जस्ट अ वन हैकिंग काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच यू कैन डू इजीली एज कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कीप बम्बार्डिंग एवरीवेयर, ठीक है. तो दिस इज वन. उसके बाद आप पहले देखेंगे कि क्या ये जॉब रिलेवेंट है. अगर रिलेवेंट है तो फिर क्या होता है कि आप देखते हैं कि किस कंपनी में जॉब है, ठीक है. आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाएं कि वो कंपनी करती क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, कौन सी ऐप्स बनाती है, कौन सी, थोड़ा सा जब पढ़ के जाएंगे, जब इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे ना, एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको खुद बताना पड़ता है, आपको हर चीज़ नहीं पूछी जाती. आपको कहेंगे वो कि आप बताएं कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ और व्हाट्स योर वीकनेस, या आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कि लेट्स अज्यूम आप बताएं कि आप सॉफ्टवेयर के आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट कैसे हैं. तो आप जब इनको पढ़ के जाते हैं ना, तो आप उनकी काफ़ी केस स्टडीज़ देख के जाते हैं. फिर आप उनको जब एग्जांपल दें कि कहो कि जब अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट्स बताना है, डिज़ाइन पैटर्न बताना है, तो डिज़ाइन पैटर्न में भी कोई मैं इनको रियल एग्जांपल बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री पैटर्न होगा, कोई पिज़्ज़ा की एग्जांपल होगी या टी मेकर मशीन होगी. उन रैंडम एग्जांपल्स के बजाय अगर मैं इनको वो एग्जांपल दूँ जो उनकी कंपनी काम करती है, लेट्स अज्यूम अगर एक कंपनी है जो कि मेडिकल फील्ड के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है, उस पर डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं और बहुत सारे और रोल्स हैं, तो आप उस पर पढ़ के जाएँ, उस पर एक थिंक करके जाएँ कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई स्ट्रक्चर सोचना पड़े तो इस तरह से मैं सोचूंगा और इस तरह से होगा. जब आप इंटरव्यू में जाएंगे उससे आपको बताए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ओके बताएं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कोई एग्जांपल देके बताएं. तो आप उनको उन्हीं की एग्जांपल बता के कि लेट्स सपोज एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, उनकी हम इस तरह से क्लास बनाएंगे, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर होगा, ये डॉक्टर्स की क्लासेस होगी, ये डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन की सब क्लासेस होंगी, ठीक है. तो एक्चुअली दे विल इम्प्रेस कि आप लॉट ऑफ रिसर्च की हुई है मेडिकल के ऊपर भी. इट्स जस्ट लाइक 1 hour और हाफ आवर ऑफ थिंग्स. और उनके साथ आपका ना 20 इंटरव्यूज कैंडिडेट्स आते हैं,
तो हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट्स आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे इन टर्म्स ऑफ स्किल्स अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात करें। लेकिन इस तरह की चीज़ जो आपकी R&D आती है, आपका एनालिसिस टाइप ऑफ माइंडसेट, अगर आप उसको सामने लेके आ जाएंगे, सो आई थिंक दिस विल मेक यू डिस्टिंग्विश एज कम्पेयर टू 28 कैंडिडेट्स। और उसमें फिर इमोशनल फील भी आ जाती है कि इसमें अगला बंदा ये देखता है कि इनका EQ भी बहुत अच्छा है, इस बंदे का ही हैज एक्चुअली डिड सम रिसर्च, ही हैज एक्चुअली empathized the requirements according to our company, not just a random theory wise examples. Okay, so this is one. उसके बाद आपको लिंक्डइन तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मली उसमें भी इस तरह के फिल्टर आ गए हैं आजकल, तो उसमें भी आप कस्टम सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरह के जॉब्स मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ होगी जो मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ के हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। सो अगर आपको रिक्रूटर्स ढूंढने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें लेट मी एंड्रॉयड डेवलपर से आप अपने जैसे लोगों से मिलना शुरू कर दें, रिक्रूटर से, एंड्रॉयड रिक्रूटर। दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन फ्रॉम योर होम यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुबई के अंदर भी ऐसी होती है। नॉर्मली लोग दुबई में जाते हैं और फिर कहते हैं जॉब नहीं मिली। नॉर्मली आपको 1 महीना रिसर्च करनी होती है बिफोर गोइंग टू दुबई, और आपको यहाँ से बैठ के लोगों के इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये सारे वो लोग हैं जो कि रिक्रूटमेंट करते हैं एंड्रॉयड फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आपने इनसे कनेक्ट करना है, उनको बताना है कि मुझे एंड्रॉयड डेवलपर की जॉब चाहिए। एंड अच्छा, ये बेसिकली सारे मेरे यूएई के आ रहे हैं, तो बेसिकली यू कैन से कि मैं पाकिस्तान में सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये सारे लोग आएंगे यहाँ पे नजर आएंगे जो कि पाकिस्तान में एंड्रॉयड के रिक्रूटर्स हैं। यहाँ नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल द आइदर इंजीनियर्स, टेक लीड्स, रिक्रूटर्स फॉर द एंड्रॉयड। एक्चुअली यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम, जो आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा उसके बाद आप उनको एक ग्रेटिट्यूड मैसेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, डियर XYZ, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय मैसेज, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, इट्स प्लेजर टू कनेक्ट, आई एम लुकिंग फॉर एंड्रॉयड जॉब, आई एम लुकिंग फॉर लाइक एनी अपॉर्चुनिटी, मतलब इस तरह से कोई कस्टमाइज लिख के ना और अपना थोड़ा सा ब्रीफ बताते हैं एक लाइनर के अंदर कि आई एम एंड्रॉयड एक्सपीरियंस डेवलपर एंड आई हैव बिल्ट 1 or 2 apps एंड दिस इज माय लिंक टू द ऐप स्टोर समथिंग। तो हो सकता है वो आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। दूसरा तरीका होता है डोंट आस्क फॉर द जॉब, डोंट बार्गेन, एक्चुअली आस्क फॉर द एडवाइस फ्रॉम एवरी पर्सन यू मीट। हर बंदे से ना आप मशवरा लें, हो सकता है वो आपको खुद जॉब उसके पास ना हो। इफ यू आस्क फॉर द जॉब दे विल से डोंट, सॉरी वी डोंट हैव एनी ओपनिंग एट द मोमेंट। अगर आप उनको ये कहेंगे, ओके डियर XYZ, आई एम कनेक्टिंग विद यू टू गेट सम एडवाइस ऑन द करियर काउंसलिंग, आई एम एंड्रॉयड डेवलपर ग्रेजुएटेड फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी, I have this and this experience, I'm struggling to find what's the right type of a companies in Pakistan or where I can find the Android developer job, can you help me or assist me in this। वो फिर क्या कहेगा, उसके अंदर फिर ना एक एम्पैथी आ जाती है, वो अपने आप को ना आपकी जगह पे रख के सोचता है एक ओके मे बी आई कैन हेल्प हिम। फिर आपको कहेगा कि ये पोर्टल पे जाओ, यहाँ पे भी जाओ, और मोर मोस्ट प्रोबब्ली ही विल कनेक्ट यू विद अनदर रिक्रूटर, फिर आप उससे बात करेंगे। सो यू नेवर नो कि कौन सा बंदा आपके लिए ना ही कैन बी लाइक अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। So this is one shortcut of how to connect your network. Okay, so and by the way, this is not only for the software. This can be for any field. So any other person who is working from other departments, telecom, electronics, or mechanical, this is the same thing here. So let me. Okay. So आप screen दोबारा से share। I think last week. Yes. I think we have some time, right? Yes, I think 5 minutes Yes, more, sir. then we will switch. Okay. How many minutes? I think 5. Then we have to talk other, I think. Okay. No, but madam, I think it's better to carry on. Until Okay, then, okay. If there are any questions, then we can go Okay. to. Oh, So, okay. Okay. इससे पहले वाली स्लाइड पे चले जाएं। Okay. Job searching. Yeah. So इसमें I think I talked about how to search, how to approach people, how to make your CV. Obviously, these are the detailed topics जिस पे अलग से sessions होंगे detail में. And actually, I can show you the examples of CVs actually in detail and how to write cover letter and those things. But at least अब आप checklist के हिसाब से note करते हैं as students के आपको ये चीजें करनी होती हैं. So you can start thinking from now onwards. अच्छा, उसके बाद one option was to search on a Google or LinkedIn. उसके अलावा rosie.pk है, mustaqbal.com है, और उसके अलावा आपकी बहुत सारी और वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे जॉब्स लिस्ट होती हैं। एंड उस पर भी आप वही कर सकते हैं, कोई फिल्टर्स लगा सकते हैं। बेसिकली आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, देयर इज मच ईजियर के एंड्रॉइड डेवलपर जॉब rosie.pk, आपके सारी rosie.pk की जॉब्स आपके गूगल पे ही आ जाएंगी, डायरेक्ट उसके लिंक्स आ जाएंगे रोजी के। तो वो क्योंकि गूगल का काफ़ी ईजी है सर्च करना,
तो वहाँ पे आपको सारे पोर्टल्स के शॉर्टकट्स वहाँ पे आ जाएंगे वन पेज के अंदर। नेक्स्ट उसमें चले जाएं। जी ओके, सो एक चीज़ होती है कि एज आई मेंशन लास्ट टाइम कि हम नॉर्मली क्या होते हैं, हमको जब पढ़ाया जाता है हम समझते हैं कि शायद टीचर, काफ़ी दफ़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं हमें टीचर सही नहीं मिला, उस क्लास को अच्छा टीचर मिल गया। So I think this is a lame excuse, honestly speaking, because now you are not a school student anymore. You are not a KG student anymore. And these are not the teachers, these are the lecturers, these are the guided, like the people in the university, they give you the direction, how to learn, what to learn. And if you need any help, actually you can connect with them. और उससे पूछा जाएगा कि सर मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एंड ये आपने टॉपिक पढ़ाया था, मुझे समझ नहीं आया, या मुझे फलां कोई रेफर कर दें मजीद बुक या फॉर वट एवर। So this is where professors and the lecturers actually help you. Even अगर आपको वहाँ पे भी help नहीं मिलती, just in case, so you have so many senior students who are actually practically in the field. तो आप वही तरीका अप्लाई करें, LinkedIn पे जाएं, लिखेंगे सिंध यूनिवर्सिटी का कोई फ्रेश ग्रेजुएट, लिखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड्रॉयड डेवलपर सिंध यूनिवर्सिटी, कीवर्ड सर्च करेंगे, आपको सारे सिंध यूनिवर्सिटी के वो लोग नजर आएंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। उनसे पूछेंगे कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। ठीक है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, कनेक्टिंग विद द पीपल, आस्क फ्रॉम द पीपल। उसके बाद क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यू कैन लर्न फ्रॉम एनी बुक, बट अगर आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं उसके बाद बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट्स अ वन ग्लोबल, आई पर्सनली बिलीव दिस इज लाइक अ वन ग्लोबल यूनिवर्सल जॉब रोल। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है पाकिस्तान में भी वैसा ही होना चाहिए, अमेरिका में भी वैसा ही होना चाहिए। इट्स नॉट कि अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई बहुत ही उनके कोई सिंग होते हैं सर पे, ठीक है, दे आर एक्चुअली फ्रॉम, समटाइम्स होता है ना कि पाकिस्तान से ही सारे जाते हैं अदर, तो इट्स जस्ट अ डिफरेंट मार्केट, वहाँ पे करेंसी डिफरेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होगा क्वालिटी का, अगर इतने दूर से बुला रहे हैं, अच्छे पैसे दे रहे हैं, तो दे नॉर्मली हायर द टॉप टैलेंट और टॉप क्रीम। लेकिन जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि अगर आप एक दफ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तो वेदर यू आर अ PHP डेवलपर, यू आर अ जावा डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, iOS डेवलपर, you are any like Python developer, IoT, Internet of Things, whatever. So all these things are just mediums or channels. अगर ये भी हो सकता है कि 1 साल या 2 साल बाद एंड्रॉयड कम्प्लीटली खत्म हो जाए। जस्ट इमेजिन कि गूगल शट डाउन हो जाता है 2 साल बाद, ठीक है, गूगल बैंकक्रप्ट हो गया, तो गूगल का एंड्रॉयड क्या खत्म हो जाएगा? और अगर खत्म हो जाएगा तो व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव करियर फॉर यू? इमेजिन करें गूगल को रिप्लेस कर दिया किसी नोकिया ने, किसी थर्ड कंपनी ने, एंड्रॉयड खत्म हो गए सारे, अब सिर्फ iOS चल रहे हैं। तो जितने भी एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं एक्चुअली दे कैन इजीली, इफ दे आर अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, they can easily transition from Android developer to iOS developer. They just need to learn the syntax and the language. They don't need to reread the whole stuff of programming, data design, pattern, software, because those are the same things for both. So being a software engineering, learning any new technology, new programming language, new platform should never be an issue. If you think it's an issue, there's an issue with you. Retouch with your seniors, get the counseling कि मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, आई एम ट्राइंग टू ट्रांजिशन इन दिस करियर, तो मुझे अब इसमें से कैसे लर्निंग करनी, वो आपको बता देगा हाउ टू ट्रांजिशन। उसके बाद लर्निंग के तरीके क्या क्या आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन यू आर द अलोन इन दिस होल यूनिवर्स, ठीक है, आपके ना आगे कोई बंदा है ना पीछे कोई बंदा है, यू आर द अलोन पर्सन। तो उस केस में दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोगों के पास नॉर्मली क्या होता है, वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, या वी आर द फर्स्ट वन। काफ़ी ऐसा भी होता है पीपल आर सेल्फ मेड, दे आर द फर्स्ट वन फ्रॉम देयर विलेज टू एक्चुअली ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और उनके आगे पीछे कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो उस फील्ड में पहले से पढ़ा हो, तो वो कहते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। सो बेसिकली टिप्स आर एवरीवेयर ऑन द फेसबुक। उसके अलावा आपको अगर कोई चीज़ लर्न करनी है तो कोर्सेरा है, यूट्यूब है, यूडेमी है, लिंड है, बल्कि काफ़ी जो कम्युनिटी ग्रुप्स भी होते हैं एंड्रॉयड के, जहाँ पे आप सिर्फ एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और आपको पता नहीं दुनिया से कहाँ से आपके वर्चुअल ब्रदर्स आपकी हेल्प करना पहुँचना शुरू हो जाते हैं। So this is one important thing. You should be a self-sufficient in terms of learning. Don't depend on anyone. Depend on anyone only for the advice as a strategy कि मैं ये सीखूं या ये सीखूं और कैसे सीखूं। एक दफ़ा आपको बता देगा, go to your Coursera, start doing the course. Next slide, please. Yeah. अच्छा, एक दफ़ा आपको जब सारी चीज़ें आ गई हैं, बेसिकली यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन एनी मोर। फॉरगेट अबाउट द जॉब, आपको कंपनी जॉब देती है नहीं देती, वॉट एवर यू वर 1 year ago, after doing all these things, you are not ordinary person, you are someone accomplished and achievement oriented person. So you have achieved a big milestones. Now it's just a matter of
कि आपको उसका फ्रूट रिजल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पैसे कैसे मिलेंगे, आप ग्रो कैसे करेंगे फाइनेंशियली, कैरियर ओरिएंटेड, प्रोफेशनली। तो उसके दो तरीके हैं, एक आपको मैंने बता दिया कि लिंक्डइन पे जाके और गूगल पे जाके किस तरह से अप्लाई करना है, उस पर आपको जॉब मिल जाएगी। जस्ट इमेजिन करें कि जॉब्स अगर कम है, ऑब्वियसली ग्रेजुएट्स काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, अगर सारे लोग 200 के ग्रेजुएट्स एक ही फील्ड में जाएंगे तो उसकी फील्ड्स में 10, 15, 20, 30 जॉब्स अगर हैं, तो व्हाट्स अदर वे कि अगर जॉब्स नहीं है, जस्ट इन केस, वर्स्ट केस सिनेरियो, उस केस में एक्चुअली देयर आर सो मेनी जॉब्स इंटरनेशनली, फॉर एग्जांपल freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, वहाँ पे बेसिकली डिग्री भी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है वहाँ पे इंटर पास और बीए पास और बीकॉम पास लोग आते हैं, वो खुद से प्रोग्रामिंग सीखते हैं थ्रू यूट्यूब, और वहाँ पे आके ना बेसिकली उनकी क्वालिटी उस तरह की ऑब्वियसली नहीं होती जिस तरह की 4 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो वो जो एक स्टूडेंट है जो कि बीकॉम करके उसके बाद उसने सिर्फ PHP की लैंग्वेज सीखी खाली, और थोड़ी सी बस ये सीखा कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना कोई हाई फाई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई आपकी रॉकेट साइंस वाली इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए, तो मुझे कहता है कि ये मेरा एक प्रोटोटाइप है और मुझे बस ये जल्दी से बना दे, जैसे भी बनाए, बेशक प्री प्रोग्रामिंग करके मुझे वह वर्किंग साइट बनाते हैं PHP के अंदर, वो आप बेशक बेस्ट प्रैक्टिस उस पर फॉलो नहीं करते, उस पर आप जल्दी बना के देते हैं। नॉर्मली 1 हफ्ते का काम होता है, उसके $200-300 आराम से आपको मिल जाते हैं। वो इतने पैसे होते हैं, नॉर्मली फिर लोग जॉब करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि अगर मुझे 1 हफ्ते के 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो वाई आई शुड डू अ जॉब ऑन 30,000 रुपीज़ पर मंथ। फिर उनको उस चीज़ का ज़्यादा स्केल हो जाता है उसमें, ठीक है। तो सो दिस इज़ वन थिंग, जस्ट इमेजिन इफ यू डोंट वांट टू वर्क फॉर एनी कंपनी, देयर आर सो मेनी वेज यू कैन डू इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेट मी ज़ूम इट। ओके, सो देयर इज़ अ फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर एंड मल्टीपल अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप साइन अप करें और वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरू में, फर्स्ट जॉब मिलते वो आप बेशक $5 में कर दें, सिर्फ प्रोफाइल बनाने के लिए फ्री में कर दें, बट उसके बाद जैसे जैसे मिलना शुरू हो जाएगा फिर आपको मजीद क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके पास इतने क्लाइंट्स आ जाते हैं कि आप मजबूर होके क्या करते हैं, रेट्स बढ़ा देते हैं कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर रहा प्रोजेक्ट्स, तो फिर मैं अब रेट डबल कर दिया। पहले आप $5 पर आवर पे कर रहे थे, तो नॉर्मली फिर $10 पर आवर हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि 1 घंटे के आपको $1,500 एज अ फ्रेश ग्रेजुएट मिले। फिर क्या होता है, फिर आगे चलते चलते वो $20 लोग कर देते हैं, फिर $30। आई हैव सीन पीपल हु वर्क नॉर्मली $30-40 पर आवर इज ऑनलाइन, दिस इज लाइक आपकी शायद पूरे हफ्ते की सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो सो दीज थिंग्स आर नॉर्मली गुड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, शायद दूसरी फील्ड में उस तरह से नहीं इतनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा आप देख लें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें आपने सिर्फ जो अमेरिका में, कनाडा में, बहुत जगहों पे लोग, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपना एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय हायर करें जिसको सैलरी दे, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स महंगा है ऑब्वियसली। तो उनको अगर $500 में कोई बंदा मिल रहा है तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में किसी को कह देते हैं बस $100 में मेरा फेसबुक पेजेस मैनेज करो, डेली 2-3 पोस्टें करो, कंटेंट वो इसको सेंड करना होता है, वो एक्चुअली पर्सन मैनेजेस द फेसबुक मल्टीपल सोशल मीडिया पेजेस ऑफ द क्लाइंट। या दराज.pk है, दराज.pk को अगर कोई इंटर्न्स चाहिए होंगे, क्लाइंट्स चाहिए होंगे जो उनकी ना प्रमोशंस करें प्रोडक्ट्स की, तो इस तरह के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, इंटर्न्स को भी काफ़ी दफ़ा हायर करते हैं कि आप हमारे पेजेस को प्रमोट करें हर जगह पे, या ये हमारी प्रोडक्ट आई हुई है इसकी SEO करें, इसको ब्लॉग्स पे पोस्ट करें। सो देयर आर सो मेनी वेज यू कैन अर्न, यू कैन लर्न फ्रॉम SEO एंड स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विसेज। अगर आपका कंटेंट राइटिंग अच्छी है, वहीं पे जाएं freelancer.com पे और कहें आई एम अ टेक्निकल कंटेंट राइटर, उसमें आप 2 या 3 सैंपल्स के तौर पे अटैच करते हैं and people can actually hire you and $10 per hour, $20 per hour। क्वालिटी एश्योरेंस अगर आपको अच्छी लगती है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं आता, तो क्वालिटी एश्योरेंस आई थिंक इज अ सब्जेक्ट जो आप इजीली सीख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक्चुअली यू कैन लर्न इट एंड उसके बाद फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, freelancer.com पे जाएं, ओडेस्क पे जाएं, कहीं भी चले जाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं और उसको कहें कि आई विल क्वालिटी एश्योर योर वेबसाइट और योर मोबाइल ऐप इन $10 और $20। तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, उसके बाद आप अपनी पूरी वेबसाइट एक्सेस करेंगे, लॉगिन साइन अप सारा कुछ करके एक एग्जिट बना के उस पर सारे जितने भी इश्यूज होंगे उनको लिस्ट डाउन करके बता देंगे कि मैंने आपकी वेबसाइट के अंदर इतने इश्यूज निकालने हैं। तो क्लाइंट खुश हो जाएगा, ये $10 तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, अमेरिकन या कैनेडियंस लोगों के लिए। तो दिस इज़ हाउ यू नॉर्मली मेक मनी। अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल वो कह रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कोई रखेगा नहीं, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द लास्ट 10% ऑफ द पीपल जिनको जॉब्स ही नहीं मिलती, वो 2-2 साल जॉबलेस रहते हैं। वो वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए किसी के, कह दे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बस आप मैं पावर पॉइंट बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग अच्छी तरह से कर लेता हूँ, मुझे एस्थेटिक्स अच्छी लगती है, प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी आती है। तो उसको क्लाइंट क्या कहते हैं, नोटपैड की तरह इस तरह से रफ डॉट्स बना के, फॉर एग्जांपल आधे घंटे में मैंने पॉइंट्स लिख दिए,
अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पावर पॉइंट बनाऊं, तो मैं क्या कह दूंगा, ऐसा बंदा जिसको पावर पॉइंट चलानी आती हो बस अपना दिमाग ना लगाए, ये मेरा दिमाग है, इसको एस्थेटिक्स में जाके अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के मुझे वापस सेंड कर दें। अब इस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आई थिंक एक दिन का काम होगा मैक्सिमम। इसके अगर आपको 5-10 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएं, तो एक्चुअली यू कैन स्टिल मेक 50-60,000 रुपीज easily a month. So this is just a one way of looking at the things if you don't get a job. Just be optimistic. There are so many opportunities. Next slide, please. Okay, so I think जितनी skills important है, जितना आपका soft skills important है, उसके अलावा सबसे जो important चीज़ है ना, it's all starts from your mindset. काफ़ी दफ़ा होता है कि आपको कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान में जॉब्स नहीं, बाहर चले जाओ। अब मेरी प्रॉब्लम ये होती है, मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया पास्ट में, कहते हैं पाकिस्तान में जॉब्स नहीं, मुझे दुबई बुला लें। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़, अगर आपको पाकिस्तान में कोई हायर नहीं कर रहा, ठीक है, 30,000 रुपये की जॉब के लिए, वाई समबडी विल हायर यू ऑन 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर दुबई में क्यों हायर करेगा आपको कोई? वो बेसिकली हायर इसलिए करता है कि एक बंदा जो पाकिस्तान में 30,000 रुपए के अंदर 1 लाख रुपए की वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो जब दुबई जाएगा तो उसको 1.5-2 लाख रुपए कंपनी जब देगी तो उनके लिए 3-4 लाख रुपए की वैल्यू क्रिएट करेगा, बिजनेस क्रिएट करेगा। तो थिंक अबाउट इट कि व्हाट यू कैन डू फॉर देम। उसके अलावा स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। दिस इज अ वेरी, अपने इस पे लिखते हैं कि एनी पर्सन हु टॉक्स नेगेटिव, आई हैव टू म्यूट हिम, आई हैव टू अनफॉलो हिम, और आई विल नॉट टॉक टू हिम इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली नॉट इन द सेंस ऑफ फाइट, बट आप उससे मशवरा उस तरह से ना करें, क्योंकि जब भी आप उससे मशवरा करेंगे वो आपको नेगेटिव चीज़ बताएगा कि यार पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका माइंड जो है ना वो आपकी पूरी बॉडी को भी ना एनर्जी लो कर देगा। ठीक है, आप अप्लाई करना छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, नो शॉर्टकट्स। काफ़ी लोग कहते हैं कि बस मुझे डायरेक्ट दुबई चला जाऊँ, मैं अमीर बन जाऊँ, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपये शुरू कर दूँ। सो कंसिस्टेंटली आप अप्लाई करते जाएं, पहले 30,000 रुपये, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80,000, इंशाल्लाह आप फिर इस तरह से 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी तक भी पहुंच सकते हैं इफ़ यू फॉलो द पैटर्न। सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई जस्ट वांटेड टू मेंशन। तो माइंडसेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अपने माइंड को बताते रहें कि, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो कि आपको मोटिवेट करते रहें, जो आपको इवन होप क्रिएट करते रहें। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, देन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर सम मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक अ संदीप और सम अदर पीपल ऑन द यूट्यूब, और उनका एक सेशन मोटिवेशनल आपको फिर थोड़ा सा एनर्जी दे देता है 1 महीने के 2 महीने के लिए। सो yeah, so I think I have covered most of the points. We have covered for the roadmap for the jobs. We discuss about the self-awareness, jobs, skills, interview preparations. Is there any 1 minute? Okay, mindset ho gaya. Okay, let me think if I missed any point. Waqar, there is a question. Someone from the students, they are asking that about your qualification and specialization. They are asking. I think I gave a little bit intro about you. So if you want to say something about yourself, you are as a software engineer, you are as a product manager, you are having a quite long experience. Okay. So tell something about yourself. So students are asking. Okay, so just I think I didn't give my introduction. Sorry for that. So actually, I'm a software engineer by profession and by degree. I have done bachelor's in science and information technology from Nest Islamabad. उसके बाद मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, I started working as a iOS developer, जो iPhone की applications होती हैं, smart applications. But at the same time, like जो हमारी जो skill set थी मेरी, I could be any developer, Java, C++, Android, .NET, whatever. So I defined myself as a software engineer, and then I switched. I worked in multiple applications on Android, iPhone and Android. उसके बाद फिर I actually started working on the products कि जो behind the scene जो software engineer के पास requirements आती हैं, जो उनके पास आता है कि सॉफ्टवेयर बनाना क्यों है, किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, उसका क्या फ्लो होगा, क्या डिज़ाइंस होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ना रेडीमेड मिलता है सारा कुछ, वो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करता है. सो एक्चुअली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिहाइंड द सीन ऑफ द प्रोडक्ट, on innovation, product strategy, product management. So right now I'm doing more like a product management and no development right now. Okay, thank you very much. Hopefully the viewers. Yeah, sure, yeah. Go ahead. So please. Yeah. Actually, I want to say something about the
sessions we are going on today. It's an introduction session. और हम इसके अंदर काफी आगे भी जो हमने प्लान किया हुआ है. All the talks you are given by us के how to make a CV, how to prepare the yourself, and then about how to look at what are the forums are available. All these tips and tricks we uploaded on our page, YouTube channel, videos, and especially followed by some assignment every sessions. We arrange one kind of the interactive sessions. The students can participate, they can talk with us, and they can ask a question that if they have something missing in their career life, even the currently one or even the past students, they can discuss and share their experiences. इवन हम क्या करेंगे कि आज के सेशन का भी मैंने प्लान किया है. आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस सेशन वी पुट सम असाइनमेंट्स ऑन ओवर देयर ऑन द टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर पेज that you have to fill up that assignment and then submit it to on the page, or even email us, and we reply you according to that, whatever the questions you are asking in that assignment, whatever the scores are coming in that assignments. And in the final year, when we completed these whole series of the sessions, we select students to one-to-one mentoring, or even guidelines, or especially those who follow all the assignments during the sessions, unko hum ek certificates bhi denge. So this is the little bit highlighted I mentioned over here, and it's really wonderful talk, Waka, you given us today. And he's company with us, and we invite some others, actually people also from the selected fields. They're having a career counseling experience quite a lot. So in every sessions, in the mid of the session, in the week also, there is interviews, there is a guidelines, tips and tricks we designed to give to our students. So well, it's a really nice. Now I think we invite say some Professor Dr. Kamran Taj Pathan, because he's also doing this job quite long ago. So please say something about the sessions, and to motivate our students to participate and share their experiences with us. So please, over to you, Dr. Kamran Taj. Thank you, Dr. Arfa. Can you hear me, I think? Yeah, we are hearing you. Okay. So from today's talk, it was very informative, by the way, but there were two words which are echoing in my ears. One is patient, and second one is you can do it. Mr. Waqar has graciously told a lot about the career counseling, but the main idea is that follow your passion. Do not follow anyone, as the term chutzpah introduced by SCDC. It is a Hebrew word which is going to tell us that always follow your instincts and do not follow anyone around you. If you are consistent with it, then you can do it. And he has done. However, he gave us a talk regarding know your goals, interest, your strength, roadmap for preparing yourself to grab your job first. Don't worry about the job. Focus on skills and expertise, which we are doing in TIC and SCDC. We are going to learn technical skills via online or offline, whether there is a mentor or if there is nobody in the world. And then he also taught us, enlightened us about self-learning and self-earning. He has given us introduced some ways that how to earn online by working remotely, given us some concepts regarding programming jobs, online earning models, and even I really enjoyed the way he told us that how can you search. Sometimes we search in the LinkedIn professional network, but he told us that we can also search through using different filters on Google as well, the current jobs. And he has really enlightened us regarding the
number of jobs starting from programming manager to the user interface designer. So if we are going to sum up, let me just give you a brief about SCDC, that how we are going to create a magic in Technology Incubation Center and in Skills and Career Development Center, University of St. Jamshoro, under the guidance of Sir Dr. Khalil Rahman Khambhati Saab. He's our dean, and under the guidance of the Vice Chancellor. Before it was Professor Dr. Burfat Saab, and now it is Professor Dr. Kaloro Saab. So what we are going to do, we are going to create magic through this. Actually, we have introduced a concept of Amir. Amir is an Arabic word, which is more powered, or you may say the self-centered, much more skilled around that particular meeting. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट काउंसलिंग करते हैं. ये हमारा मेन पॉइंट है, जो सर वकास साहब कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम यही करते हैं. लेकिन सर की अप्रोच बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई, और हम भी अपने हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं. तो मैं थोड़ा सा उस पर 2 मिनट बात करूंगा. वो ऐसे है कि हम एक मोर एम्पावर्ड बच्चा, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को जावा बहुत अच्छी आती है, वो एक क्लास में है, और एक बच्चे को, उसी बच्चे को जो है वो एंड्रॉयड कम आती है उसी क्लास में. तो हम क्या करते हैं, हर किसी से एक प्रोफाइल बनवाते हैं, हर बच्चे से. फिर जिसका जो उसका इंटरेस्ट है एक वो, और जो उसी बच्चे का पैशन है लाइक प्रोग्रामिंग और समथिंग एल्स, तो फिर हम बोलते हैं जब हम जावा के क्लासेस चलाएंगे ऑनलाइन, तो आप क्या करेंगे, उसमें 3 to 4 आवर्स इंगेज करेंगे 20 to 25 बच्चों को, और एक बच्चा जो मोर एम्पावर्ड होगा, मोर स्किल्ड होगा, एक्सपर्टीज होगी उसकी, वो बच्चा काउंट होगा उनका अमीर उस टाइम का. अब अगर फॉर एग्जांपल 3 आवर्स वो कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं कोई भी वीडियो, और उसमें वैसे आपको पता है दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड बाय द वे, तो हम उनको क्या करते हैं, एक बंदा बिठा देते हैं कि नहीं अब आपको देखना है 3 आवर्स वीडियो. वैसे वो 3 आवर्स में थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं सर 20 मिनट बहुत है, 25 मिनट बहुत है, 50 मिनट बहुत है, लेकिन हम वी आर गोइंग टू इंसिस्ट, इम्पोज. तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो छोटे लेवल की जो भी क्वेरीज होती हैं उन बच्चों की, वो अमीर सॉल्व करता है. अच्छा, ये वो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम किसी बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, तो उससे पहले एक असिस्टेंट उसका आ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर और जो हाइट और वेट और BMI हमारा चेक करता है, और फिर वो डॉक्टर को अपनी लैंग्वेज में बता देता है. तो अब वो अमीर क्या करता है, जो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है और जिसको वो चीज बेहतर आती है, वो उन बच्चों को जिनका इंटरेस्ट है, जिनको नहीं आती, उनको जाके समझाता है. वो 3 आवर्स उनके साथ होता है, एंड देन accompanying with all those people, all those students, फिर हम जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, आपको मैं मतलब बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको बता दूं कि SSDP और SCDC में सर वकास सुमरो जो है वो सेशन देते रहते हैं, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ आवर एक्सपर्ट. तो जस्ट वो सॉफ्ट और टेक्निकल स्किल्स के बाद हम इन जो मेन लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, हम इनके पास बच्चों को भेज देते हैं. जो जैसे सर वकास का हमेशा ये मकसद होता है कि हम उसका फीडबैक लें, और ये नहीं कि सिर्फ सेमिनार करवा दें, ये नहीं कि सिर्फ अवेयरनेस करवा दें, लेकिन उसको फीडबैक मैकेनिज्म. इसी वजह से उन्होंने हमारी ये सीरीज ऑफ जो है सेशंस हमारी कबूल की है, और वो हमें एनलाइटन करेंगे. और इंशाल्लाह ताला, जैसे मैडम ने कहा शुरू में, कि वो इंशाल्लाह मैजिक करेंगे, और देखिएगा आप कि आप में बहुत सारा फर्क आएगा जो वो आगे चल के जो सेशन करने वाले हैं. तो इसीलिए मैं आप सबको, मैडम आरफा आपको भी कांग्रेस करता हूँ, और सर वकास साहब आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ. स्पेशली डॉक्टर खलील रहमान खंभाटी का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं हमारी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में. हाउएवर आई एम आल्सो द चेयरमैन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लेकिन उनके बिना और हमारे कुछ सीनियर्स के बिना ये चीज अधूरी है. ओवर टू यू डॉक्टर आरफा. Yeah, thank you very much, Dr. Kamran Taj Pathan. And then it's really nice you discuss our whole journey. So actually, we start our first right step. It will definitely bring the change in the society, and we all are the change makers in the world. This is my motive, and this is the all of us motive. Even Sir Khalil, when he's been starting his directorship at the IICT, he was very enthusiasm that to bring the change in the department.
that why the students are suffering, why not the students having a jobs, why they are complaining. And especially being as a public university academics, we always seen many poor kids. They are coming from the different part of the Pakistan, especially from the Sindh. And literally उस time पे we were thinking कि how we can help them, how we can help them to continue their future plans. They can be a successful students in the market. So he's very energetic and he's always saying do something, and we plan a lots of the things in that time also. But unfortunately, this pending situations make us very thinking about a new ways to finding how we can continue our that journey. So actually, since last 6-8 months, all we've been in a situation where what to do, because all suddenly the things are closing down, all the programs are shutting down, so we cannot meet and at the physically locations. So we decided to do these programs in this way, like online sessions and all these things. We started even though the students who are coming to the department, or even those who are not actually the part of the department, if they're having a actually interest in the IT, software, telecom, electronics, so they can do something. So that's why we plan this with Waqas. He's really energetic. He says, yes, I am available. Kamran, Dr. Kamran, and then Sir Khalil, that okay, let's start this series, and then we invite the lots of other professionals also. They can give you the hint, tips and tricks, and even follow up by the some activities also. So we plan a lots of the activities in these sessions. Start from the self-awareness, which is this session's task, which I uploaded on the page. And then in the second session, we start with the job, how to search the jobs, then the followed by the how to write a CV and covering letter, then the followed by the interview plan. And we practically doing those interviews, how that will be conducted and what are the things are to be noticeable. So anyway, it's a really quite long things. We are, of course, connected together in this whole program. And even I'm really appreciated कि आप लोग भी अपने तज्जिए दें, आप लोग भी अपनी पार्टिसिपेशन दें, और जो भी प्रॉब्लम आप एड्रेस करना चाहते हैं या आपको होता है कि ये चीज़ हमें सीखनी है, सो वी आर वेलकम टू यू कि आप यहाँ पर पोस्ट करें एंड देन सेंड अस द ईमेल, मैंने दी हुई है, वहाँ पर कांटेक्ट करें. डॉक्टर कामरान, ताज सर, खलील हैं, मिस्टर वकास हैं, एंड मी. We share all the things on the Facebook page and the YouTube, everything. और ये रिकॉर्डेड सेशन से तो जाहिर बात है इसीलिए रखें कि समवन एल्स अगर अभी नहीं अटेंड कर सके तो वो बाद में अटेंड करें, इसको देखें. And especially to motivate all the students, not inside the IT, but we are looking forward the all around the other universities also, कि उनको भी अगर कोई problem है, they can come forward and discuss over here. So once again, I thank you to all, and especially I say, Sir, Professor Dr. Khalilur Khambati Saab, that they say something about in the end. So to say about the overall view and motivate our students. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, all of you. Really, it was an excellent presentation by Mr. Waqas Qadir. I'm sure that our student must have got the benefit from his knowledge, from his experience, which he shared with you. But one thing is pitching in my mind is that why the students did not ask too many questions. Because sometimes as a presenter, you forget or you miss something, and which you were supposed to transfer, but due to any other reasons, you could not make it. In the questions and answer session, these things again can be explored, which were missed. So I'm sure next time the students will ask the questions. Anyway, excellent. Thank you, Arfa, as a focal person of TIC. Thank you, Dr. Kamran, and
chairman and focal person for STC, and our guest speaker. Inshallah, this will continue for long time period, whether we are physically connected or whether we are virtually connected. Allah bless you all. Thank you very much. Thank you very much. Waqas, you want to share something in the session. No, so there was something just I wanted to create some awareness or kind of an interest in the students. So just to share something, what happens when we give a session or something, the purpose of each session is something measurable, achievable tasks, not just like a motivation. Yes. And so the thing is, whatever the student before listening to this session and after this listening to this session, just imagine after 1 week, after 2 weeks, if there is no difference in the students, I think this session is not worth it. So just to make it more worthful, I wanted to share something like it's not about just the talks or the words. So you have to make it achievable, measurable, and visible things. So let me show you here the screen. So Okay. this is just to show you कि जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जस्ट आप अपनी जो सेल्फ असेसमेंट करेंगे, जो डॉक्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगी असाइनमेंट्स वगैरह सेल्फ असेसमेंट की, तो उसके बाद आपने कुछ ना कुछ आपके माइंड में ना गोल बन जाएगा, कुछ आपको टास्क नजर आ जाएंगे. उसके टास्क के बाद डोंट डू इट एज इन योर माइंड, कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, कीप थिंग्स अचीवेबल, मेजरेबल, डे टू डे बेसिस, वीक टू वीक बेसिस. अपने आप को खुद कंपेयर करें कि मैं पिछले वीक में मेरे पास कितनी स्किल्स थी, इस हफ्ते में मेरी कोई दिन डिसाइड कर लें, फिक्स टाइम डिसाइड कर लें. फॉर एग्जांपल फ्राइडे 2 PM एवरी वीक, या आप संडे मॉर्निंग एवरी वीक. तो हर संडे को ना अपनी खुद से अपना कोई बोर्ड बनाएं, कोई मैनेजमेंट बनाएं. तो दिस इज जस्ट टू शो कि हर टास्क जो मैंने ये यहाँ पे कैरियर पास आपको बताएं, दिस इज जस्ट टू ग्लांस फॉर द नेक्स्ट सेशंस, so you can have more suspense and wait for and interest for this with the motivation. So this is just to see कि it's not about जो मैंने चीजें बताई थी, this is like more like a high level. Actually those things can be broken down by you yourself as a person, because you know yourself as a individual कि मैं क्या कर सकता हूँ, किधर जा सकता हूँ. जब आप उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे डेवलपर इज नॉट अ वन रोल, सॉफ्टवेयर डेवलपर उसके अंदर फिर ये 4 आते हैं. डिजाइन इज नॉट अ वन रोल, डिजाइनर उसके अंदर भी 4-5 चीजें आती हैं. तो बेसिकली एक ही डिग्री आपको डेवलपर बनाती है, फिर डेवलपर के अंदर 4 जॉब्स होती हैं. डिजाइन बना सकती है, डिजाइनर अगर आप बनते हैं तो डिजाइनर के अंदर फिर मजीद जॉब्स होती हैं, और हर एक जॉब अलग होती है, नहीं कि आप एक ही बंदा सारे काम कर रहा होता है. तो आप किसी एक चीज़ में तो इतने अच्छे बन जाएं कि वो आप अच्छे तरीके से कर लें. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन देखें, आईटी का सब्जेक्ट है, उसके अंदर इतने सारे रोल्स क्रिएट होते हैं, एंड दीज आर ऑल जॉब टाइटल्स. दिस इज नॉट लाइक अ कोर्स और दिस इज नॉट लाइक अ सब्जेक्ट, दिस इज जस्ट स्पेसिफिक जॉब टाइटल जिसकी एक सैलरी होती है, और हर बंदा अलग काम कर रहा होता है अपने से, और सारों की डिग्री एक ही होती है. तो उसके बाद आप डेटा साइंस देखें, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के रोल्स देखें, और ये सारे सिंध यूनिवर्सिटी से ही लोग निकलते हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ रोल्स पे चले जाते हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं होता, कंपनी इनको जिधर लगा दे वो चले जाते हैं शुरू में फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे. अगर आप इनको थोड़ा सा देखना शुरू कर दें, इसके हिसाब से अपने आप को एवैल्यूएट करना शुरू कर दें, एक्चुअली दिस विल गिव यू अ लॉन्ग टर्म विजन कि आप कहाँ पे फिट हो रहे हैं, बजाय इसके कि कंपनी डिसाइड कर ले कि आपको कहाँ पे फिट करना है. सो दिस इज अगेन कि तो थोड़ा सा मैंने अचीवेबल मेजरेबल बनाया हुआ है इसको, कि मे बी वी विल बी वॉकिंग थ्रू दीज थिंग्स. आप उसके बाद टेक्निकल स्किल्स पे आएंगे, और उसके बाद सर्टिफिकेशंस कौन सी करनी है. उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास इवन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग कैसे हैं. तो बेसिकली दीज आर द बोर्ड्स जो कि आप खुद से सेल्फ मैनेज कर सकते हैं. आई विल शेयर दिस विद द टीम एज वेल, सो मे बी यू कैन डू अ सेल्फ मैनेजमेंट बाय योरसेल्फ, ईच पर्सन लाइक एज इंडिविजुअल. उसका एक अपना बोर्ड हो और अपने टास्क खुद से बनाएगा. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल. दिस इज जस्ट काइंड ऑफ glance. Thank you very much, Waqas. It's really nice hint and you give to the students that how they can organize and manage their self. So well, it's really wonderful talk from your side, and I really appreciate the time Sir Khalil given us, Professor Dr. Khalil Saab given us, and then Professor Dr. Kamran Taj given us, and then part of this session, and then continue our this journey, and inshallah we meet again next live webinar on every Saturday, and bring up more and more powerful, more tricks and more updates about the how you can be a successful person in their related fields, not only the IT software but telecommunication and electronics and other fields also. Okay, what makes you a more fruitful information or fruitful person that the from the actually community, your family, and then the country and worldwide.
So till that, Allah Hafiz. Once again, thank you a lot and good night to all. Thank you, Allah Hafiz.